Okay, hello, class 11 students. Good morning to all of you. Actually, it's not good morning, it's good afternoon to all of you. It's almost 3 o'clock. Okay. Now, see, in the last videos, we continue with the sums of trigonometry. Okay, the overall, all the types of sums are done. Okay, now we left with two different types of sums. Where first one is we will do trigonometric sum using componendo and dividendo. So in this video we will discuss with those sums which where we need to apply something wonder of the world that is called as componendo and dividendo. We will learn how by seeing the question we need to identify, or that thing should click in your mind. Yes, this question is componendo dividendo question. So I am trying to do some questions which are not there in the RS Agarwal. Okay, so that's why I have noted down all the questions out here. And then the next type of sum is questions related to trigono-quadratic equation. Okay, trigono-quadratic equation वो हम बाद में पढ़ेंगे. So this is most probably the second last video of the chapter trigono. Most probably, I don't know. Okay, so first we'll understand what is componendo and dividendo. Okay. Now, first of all, whenever we apply componendo and dividendo, there should be an equation. There should be LHS, there should be an RHS. Then only we can apply componendo, otherwise we cannot apply. सिर्फ LHS लेके काम करोगे तो componendo dividendo नहीं लगा सकते. You should apply componendo and dividendo to both the sides of the equation. ठीक है, these are actually proportional. यहाँ क्लास 11 में पढ़ा था आपने एक टॉपिक कॉल एज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. वहाँ पे ऐसा टॉपिक पढ़ा है आपने क्लास 7 और 8 में. Okay, see, if I have an equation like this, a by b equals to c by d, numerator by denominator equals to numerator by numerator. This is the equation we have. For example, I need to apply componendo. What is componendo? Numerator plus denominator by denominator, numerator plus denominator by denominator, c plus d by d, a plus d by d. तो अगर मैं denominator को ऊपर में ऐड कर दूँ, this is called componendo. I think you are familiar with this. Okay, अगर मैं dividendo का बात करूँ, तो what is that? Numerator by numerator minus denominator. ऐसा करना है. Numerator by numerator minus denominator. अगर numerator by numerator minus denominator. और ऊपर क्या है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. दिस इज componendo, this is dividendo. The question which we are dealing with is we apply both together, componendo and dividendo both. मतलब क्या? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. मतलब इसी से ये लिख सकते हैं. जब हम ऐसा करेंगे तो दोनों इक्वल होगा, it becomes componendo. जब मैं ऐसा करूंगा dividendo. जब मैं ऐसा करूंगा, that is called componendo and dividendo both together. Okay, so this is the numerator plus denominator, numerator minus denominator. Now see, from the question how we'll understand that we need to apply componendo and dividendo in the question. तो तुम्हें अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिखे सेम टर्म्स प्लस माइनस में डिफरेंस है, सेम टर्म्स प्लस माइनस में डिफरेंस है, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में दिखे अगर मार दो componendo and dividendo. ठीक है ना? बस इसी चीज को हम गौर करेंगे हर क्वेश्चन में and then we'll do the sum. Understood? Numerator and denominator दोनों same terms है. देखो only plus minus is different. So that means x plus y by x minus y अगर दिखे, that means we have to go for componendo and dividendo. Similarly, m plus 1 by m minus 1 दिखे, same terms with a change of sign. So you have to go for componendo and dividendo. Okay. Now please pause the video and write down these things. What is componendo and dividendo? Okay. Now there are total 7 questions I have written on the board. All the 7 questions I will not solve. The video will not permit. But don't worry, almost similar type sums are. Okay. So let's go for one by one. I will try to solve all the 7 questions. Let's see. If x plus y equals to z and tan x equals to k tan y, prove that sin z equals to k plus 1 by k minus 1 sin of x minus y. तो क्या करें बेटा? What you can see? Okay. दिख रहा है? सेम टर्म्स प्लस माइनस के फॉर्म में. तो मैं क्या करूंगा? कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लाऊंगा. लेकिन टू अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड के नीचे 1 होना चाहिए. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब के नीचे 1 होना चाहिए. ओके, सो सी व्हाट आई एम डूइंग इट. सो वी अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन दैट वी हैव k plus 1 k minus 1. दैट मींस वी नीड टू अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड. तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होता है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए. So where we have k, here we have k. So I'm writing this equation first. मेरे पे k दिख रहा है ना? अब मुझे k के नीचे 1 चाहिए, तो ये रहा. I'm shifting this term that side. आ गया ना k के नीचे 1, बाकी इस पर एक टर्म आ गया. So now from this equation k by 1 की जगह ऐसा कब बनेगा? जब मैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगाऊंगा तब बन जाएगा.
So by component and dividend, write down the full form. Okay, k plus 1 numerator plus denominator by numerator minus denominator. Same thing you have to apply here. Apply in the RHS, LHS also. Tan x numerator plus denominator. Tan x plus tan y divided by tan x minus tan y. Numerator minus denominator. Okay. अब इसके बाद क्या करूं? ये टर्म तो मिल गया. अब देखो बाकी क्या है, साइन में है ना. That means you need to convert the tan into sin cos. सिंपलेस्ट फॉर्म लाना पड़ेगा. So tan x की जगह में sin x by cos x, tan y sin y by cos y and so on. Now what you have to do? Take the LCM. Cos x cos y कट जाएगा. So after taking LCM we end up like this. Now see, ये तो कट गया. Now ये क्या बन गया? देखो फॉर्मूला है cos a sin a cos b plus cos a sin b sin of a plus b. अगर sin a cos b minus cos a sin b sin of a minus b हो गया. Now see, k plus 1 k minus 1 यहाँ पे है. sin of x minus y भी है. बट यहाँ पे क्या है? z है. लेकिन मेरा क्या है? x plus y. But it's written in the question x plus y is z. That is in the place of x plus y I can write z. So sin z. बाकी इसको उधर शिफ्ट कर दिया. हो गया प्रूफ. So कैसे मुझे समझ में आया कि कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाना है? इस टर्म को देख के समझ में आया. और कैसे पता चला न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा? ये पहला न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है. तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होना चाहिए. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. tan a, सॉरी आई डिड दिस ऑफ, मैं गलती से ना थर्ड क्वेश्चन कर दिया. चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन 3 पूरा नहीं करूंगा क्योंकि सिमिलर टाइप है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा एंड tan alpha by tan beta equals to x by y. Prove that sin of alpha minus beta equals to x minus y by x plus y sin gamma. क्या दिख रहा है इधर स्पेशल? ये देखो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर सेम टर्म से प्लस माइनस का डिफरेंस है. ठीक है ना? तो पहला वाला न्यूमरेटर होता है, दूसरा वाला डिनोमिनेटर होता है. ऐसा कहीं पे है क्वेश्चन में? ये रहा. So starting from here. Done. Applying component and dividend. Numerator plus denominator. Numerator minus denominator. Numerator tan alpha minus denominator tan beta equals to numerator x plus denominator y. Numerator x minus denominator y. हो गया. But see the proof that part उल्टा है. x minus y ऊपर होना चाहिए, x plus y ऊपर नीचे होना चाहिए. So हम reciprocally both the sides. ये ऊपर ये इधर हो गया. अब ये क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन सेम है. इधर tan के फॉर्म में आ गया, इधर किस फॉर्म में? sin के फॉर्म में. तो क्या करोगे? sin by cos करो. Exactly what I solved first question and third question, they are of similar type. So I'm not solving the rest part. Okay, that much you need to do. Okay, let's go to the next question. Okay class, question number 2 is a homework. I will not say how to do. Third I did in a half way. आधा किया तुम्हारा काम है ना. 3 is a homework, 2 is a homework. तुम्हारा काम है class. Okay, 5 is the homework. तुम्हारा काम है. Okay, so मैं कौन सा करूँगी? अक्कर हम लोग will do number 4. Now check out the number 4. Sin alpha equals to k sin beta, and we have to prove that this tan of alpha minus beta by 2 equals to k minus 1 by k plus 1 tan of alpha plus beta by 2. अगेन यहाँ पे क्या लिख रहा है? फिर से देखो सी, है ना? सेम टर्म्स विद प्लस माइनस साइन. तो बस लाएंगे which is component dividend will do it. Okay, now see the fourth one. बता दिया मैंने. k minus 1 k plus 1 दिख रहा है. That means k should be numerator, 1 should be denominator. मतलब मुझे k by 1 चाहिए पहले. Then we apply component dividend, you will come across this expression, right? Okay, तो कहाँ पे k? ये रहा, इसको लिख दिया. अब मुझे k by 1 चाहिए, तो shift that side. Same thing what we did earlier. आ गया k by 1. Now we apply component dividend. Numerator plus denominator sin alpha plus sin beta, sin alpha minus sin beta, numerator minus denominator equals to numerator plus denominator k plus 1 by k minus 1. But see the proof that part k minus 1 ऊपर होना चाहिए, k plus 1 नीचे होना चाहिए. तो उसको रेसिप्रोकल मान दिया. ओके, इसके बाद क्या करो? हाउ विल अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन तुम्हें खुद बोलेगा मुझे क्या करना है. चेक आउट. वी एंड अप विद sin alpha sin beta sin alpha sin beta. What is here we have in the question? Tan. And angles देखो तो alpha minus beta by 2, alpha plus beta by 2. तो इसके साथ मैं क्या करूं कि एंगल्स दिखे मेरे को. कौन सा फॉर्मूला लगाने से एंगल आ जाएगा? तो sin a माइनस sin b फॉर्मूला होता है 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. आ गया फॉर्मूला. नेक्स्ट सिमिलरली sin a plus sin b 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2. आ गया फॉर्मूला. सो मुझे कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला लगाना है? फ्रॉम द एंगल्स आई कैन आइडेंटिफाई कि फॉर्मूला लगाना है. देखो 2 कट गया. अब ये क्या दिख रहा है? sin alpha minus beta by 2 cos alpha minus.
दिस बिकम्स tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है ना, ओके, डिवाइडेड बाय साइन, और ये कॉस नीचे आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, सो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू k माइनस 1 बाई k प्लस 1. समझ में आया कहां से आया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सो सेम थीटा है ना, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा, यहां भी सेम थीटा है तो ये नीचे चला जाएगा, साइन बाय कॉस tan थीटा. अब प्रूव दैट में क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 उस तरफ है, ठीक है, इसको इस तरफ रख दो, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू k माइनस 1 बाई k प्लस 1, इसको उधर शिफ्ट कर दो, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2. सी क्लास, यू फाइंड द क्वेश्चन वेरी इजी, यू नो व्हाई, बिकॉज आई एम डूइंग इट. अगर मैं ये बोलूं ना तेरे को कि कंपोनेंट डिविजन लगाना है तो हो गया, फिर ये क्वेश्चन करते रह जाओगे. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज नीड टू ट्रिक. ओके, लेट्स गो फॉर 6th नंबर क्वेश्चन नाउ. देखो अब कैसे पता चलेगा, अब क्या करो, 6th नंबर क्वेश्चन में sin of x plus y, if sin of x plus y by sin of x minus y equals to a plus b by a minus b, prove that tan x by tan y equals to a by b. अभी तक क्या था, प्रूव दैट में कोई टर्म था ना, समथिंग प्लस माइनस समथिंग माइनस प्लस, सेम टर्म्स प्लस माइनस, प्रूव दैट में था, क्वेश्चन में नहीं था. तो वहां से मुझे पता चला कि x बाई y चाहिए, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाऊंगा आंसर आ जाएगा, k बाई 1 चाहिए, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाऊंगा आंसर आ जाएगा. यहाँ तो है ही नहीं, प्रूव दैट में तो a और b है. दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी वन, इसमें पहचानना गलती होता है, स्टूडेंट्स फेस मिस्टेक्स, दे डू मिस्टेक्स, दे डोंट अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में भी कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है. ओके, हाँ, बिकॉज आई टोल्ड यू, सी द प्रूव दैट पार्ट, यू विल गेट टर्म्स, सिमिलर टर्म्स विद प्लस माइनस डिफरेंस. You are having that here, similar terms with the plus minus, but not in the prove that part in the question. क्वेश्चन में है, prove that part में नहीं है, ठीक है ना. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसके साथ कंपोनेंट डिविडेंड लगाऊंगा तो आप में चेक करते हो, देखो तो a प्लस बी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर a प्लस बी माइनस डिनोमिनेटर माइनस a प्लस बी. देखो तो ध्यान से देखो, आ गया ना 2a बाई 2b, आ तो गया a बाई b, इसलिए लगा हुआ, ठीक है ना, बिकॉज प्रूव दैट में मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा, फ्रॉम द प्रूव दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वी नीड टू अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंड. लेकिन जो गिवन पार्ट है दैट हैज दोस केसेस, समथिंग 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 माइनस समथिंग समथिंग प्लस समथिंग. ओके, सो दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो लेट मी डू द सम. सो सॉल्यूशन 6, आई हैव रिटन व्हाटएवर इज गिवन टू यू, sin of x plus y डिवाइडेड बाय sin of x minus y इक्वल्स टू a plus b by a minus b. ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाऊं a बाई b आ जाएगा. सो वी अप्लाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड बोथ द साइड्स, ठीक है, सिमिलर टर्म्स प्लस माइनस, बट इट इज इन गिवन टर्म. टिल नाउ इट वाज इन प्रूव दैट पार्ट, बट नाउ इट इज इन गिवन टर्म. सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अगेन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ओके, तो सॉल्व करते हैं. तो अब क्या करें, इसके साथ क्या करें, LHS के साथ. सो व्हाट यू नीड टू प्रूव दैट एंगल के XY है, बट व्हाट यू फेस है, ये क्या है, एक सम है, एक फॉर्मूला है, सॉरी इट्स अ फॉर्मूला, sin of a plus b प्लस sin of a minus b. ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2 sin a cos b. ओके, sin of a plus b प्लस sin of a minus b, 2 sin a cos b. अब दूसरा sin of a plus b माइनस sin of a minus b, हो जाएगा 2 cos a sin b इक्वल्स टू a 2a by 2b. सो 2 कर गया. अब देखो sin by cos it becomes tan x divided by sin by cos y it becomes tan y equals to a by b. प्रूफ दैट हो गया. Now this becomes so easy ना, कितना इजी है सर क्यों करा रहा है बोर्ड में. अरे इजी तब हुआ ना जब तू कंपोनेंट डिविडेंड लगाया, अगर यही नहीं लगाएगा तो इजी कहां से, बंटा तो बंट हो जाएगा. So that you need to understand things clicking in should be clicking in your mind. Yes, we have to go for component and dividend. Okay, so I am not going to do this sum. 7 number is again a homework for you. So how many questions homework I have to do? 1, 2, 3, 4. But actually I did all the sums. Okay, now we'll do one more sum which is there in the RS Agarwal. Okay, now see the last question of this type where we used to go for component and dividend. Whatever question I thought that you should practice, I am doing it. But trigonometry is unlimited, unbounded.
एज मेनी क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस उतना कम होगा, ठीक है ना। सो सी, इफ cos of a plus b divided by cos of a minus b equals to sin of c plus d divided by sin of c minus d, prove that tan a tan b tan c plus tan d equals to 0. ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया था मैंने। यहाँ पे एंगल्स देखो और यहाँ पे एंगल्स देखो, ठीक है ना। यहाँ पे है ना समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग। तो अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। First I've written solutions are for I've written whatever is given to you. Component dividendu. Numerator plus denominator divided by numerator minus denominator equals to numerator plus denominator, numerator minus denominator. Now this becomes a formula. Angle आ जाएगा, cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos a cos b आ गया ना angle AB. Cos of a plus b minus cos of a minus b minus 2 sin a sin b. फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पे ए सी है, बी डी है, 2 साइन सी कॉस डी। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस डी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन डी, ए सी बी इज डी। You understand which formula we are applying? We are applying these formulas, हाँ। अगर पता नहीं होता है तो लिख के बताऊं क्या? ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली लग रहा है। यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा वाला, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस ए साइन बी। अगर माइनस है तो पहले कॉस आएगा ए के साथ फिर साइन, अगर ए अगर प्लस होगा तो पहले साइन आएगा फिर कॉस। सो वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। सब सी, आई वांट इन टैन फॉर्म, सो वी हैव टू गो फॉर द टैन फॉर्म। बट सी व्हाट आई गेट, cos a by sin a, I'm getting cot a, cos b by sin b, I'm getting cot b, sin by cos tan c आ गया, cos d by sin d tan cot d। बट आई वॉन्ट एनीथिंग इन tan, सो cot a की जगह cot b की जगह 1 by tan and tan भी लिख सकता हूँ। tan c को tan c छोड़ देना बिकॉज वी नीड tan, बट cot को फिर से 1 by tan d लिखना पड़ेगा, 1 by tan d। अब क्या शिफ्ट करो, ये इधर वो उधर, आ गया आंसर खत्म। अगेन दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी सिंपल। यू नो व्हाई सिंपल? बिकॉज यू डिड दिस स्टेप। ये स्टेप अगर दिमाग में क्लिक नहीं किया ना तो ये क्वेश्चन करते रहो, आंसर आने में बहुत हालत खराब हो जाएगा। ओके, दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में मुझे कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाना है। सो देयर इज ओनली वन वे टू अंडरस्टैंड, दैट इज दैट व्हाट इज दैट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स होंगे प्लस माइनस का डिफरेंस के साथ, whether it is in given term or whether it is in proof that term, please bother about it. Finally ये conclusion निकला। We always go for component dividend whenever we see terms in numerator and denominator, same terms with a plus minus difference. Okay, now we'll come across the next types of sum. Okay, now see ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर पहचानना आ गया ना, if you can identify the type I'm talking about, then it's very very important for you and it makes lots of questions of class 12 very very important for class 12. क्लास 12 के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि बहुत इजी बन जाएगा इफ यू नो दिस ट्रिग्नोमेट्री, दिस पार्ट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लास 12 मैथमेटिक्स। ओके, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, व्हेन यू कम अक्रॉस क्लास 12, ये बहुत बहुत हैंडी है दिस मेथड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स अ स्पेशल टाइप 1। इन दिस वीडियो वी विल डू दिस स्पेशल टाइप 1। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर स्पेशल टाइप 2। ओके, ये स्पेशल टाइप 1 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पेशल टाइप 2 वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन है, ऐसा होगा क्वेश्चन, प्रूव दैट tan ऑफ समथिंग इक्वल्स टू f ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। इसका मतलब क्या होता है? f ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, लेट मी गिव यू एग्जांपल। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan a by 2 इक्वल्स टू √1 माइनस sin a by 1 प्लस sin a। ऐसा एक तरफ tan है, दूसरी तरफ sin और cos के फॉर्म में कुछ लिखा है, और मान लो ऐसा है, ये तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली, और sin a by 1 plus cos a और cos a 1 minus cos a by sin a, इन टाइप के सम्स जहां पे एक तरफ tan होगा और दूसरी तरफ sin cos के फॉर्म में कुछ लिखा होगा। ठीक है, ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। क्लियर? ऐसे टाइप के सम्स। तो व्हाट इज द स्टेप 1 थिंकिंग? स्टेप 1 थिंकिंग जो है, वॉट एवर यू हैव हियर इन टर्म्स ऑफ sin cos। ओके, ये एग्जाम्पल 1 ले लो। अब मान लो एग्जाम्पल 2। अब मान लो ऐसा प्रूफ कर दिया, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 ओके इक्वल्स टू कॉस ए बाई 1 प्लस sin a। मान लो ऐसा पूछ दिया, ठीक है ना, ऐसा आ गया।
इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। प्रूफ दैट इस तरफ tan है, एक तरफ cos sin है। यहाँ पे ये एक तरफ tan है, एक तरफ cos sin का फॉर्मेट है। तो इन सबको मैं बोल रहा हूँ f ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। क्लियर? मतलब कुछ लिखा होगा sin थीटा एंड cos थीटा के फॉर्म में। नाउ सी, तुम्हें पहले चेक करना है ये जो भी f ऑफ sin थीटा cos थीटा जो भी sin cos के फॉर्म में लिखा हुआ है वहां पे दो कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। मस्ट मैच द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट, ऑल थीटा मस्ट बी सेम, सारे थीटा सेम होना चाहिए, ए सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, खत्म, ये मेथड नहीं लगेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। नेक्स्ट, साइन थीटा अकेला होना चाहिए। साइन थीटा अकेला मतलब सिर्फ साइन थीटा होना चाहिए, साथ में 1 प्लस 1 माइनस कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे साइन थीटा अकेला है, यहाँ पे साइन थीटा अकेला है, बट यहाँ पे साइन थीटा के साथ 1 आ गया, मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ मैच नहीं कर रहा। साइन थीटा के साथ अकेला 1 नहीं है। एंड जो cos थीटा टर्म होगा, द cos थीटा टर्म मस्ट बी 1 प्लस माइनस cos थीटा, या तो 1 प्लस cos थीटा होगा तो 1 माइनस cos थीटा होगा। So in other way around, what is step 1? The step 1 is that whatever you have in terms of sin cos, you check whether all the angles are same or not first. If they are not same, gone case, छोड़ दो, ये नहीं है वो, इस टाइप से करना नहीं है। If the angles are same, then your next job is to think whether sin is alone or not. And with cos, do you have 1 or not? Plus minus 1 है कि ओके, मान लो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जैसे आप हो गया कंडीशन सेटिस्फाई, साइन अकेला है 1 के साथ cos है, साइन अकेला है ओके 1 के साथ cos है, 1 के साथ आइदर प्लस cos होगा और माइनस cos होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है देन यू गो फॉर स्टेप 2। इफ मैच विद द अबव पैटर्न ऑफ स्टेप 1, इफ मैच विद द अबव पैटर्न ऑफ स्टेप 1, अप्लाई द फॉर्मूला। तब तुम ये तीन फॉर्मूला लगा देना, साइन ए का फॉर्मूला लगा देना, 2 sin a/2 cos a/2, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस cos थीटा, जो दिखता है लगा दो। प्रॉब्लम है इस स्टेप के साथ, क्वेश्चन यू विल फेस दिस वन यू विल फेस, जहां पे मैच नहीं करेगा। इफ नॉट मैच विद द पैटर्न ऑफ स्टेप 1, इफ नॉट मैच, देखो ये मैच नहीं कर रहा, साइन के जगह cos है, cos अकेले नहीं, cos के साथ 1 प्लस होना चाहिए, है क्या 1 प्लस? नहीं, समझ में आ रहा है? और 1 के साथ cos होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो पैटर्न मैच नहीं कर रहा। इफ नॉट मैच विद द पैटर्न ऑफ स्टेप 1, देन यूज क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट टू मैच। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट लगाओ और मैच करो। मतलब क्या करना पड़ेगा, इस cos को साइन में पलट दो, π/2 माइनस लिख सकता हूं, और इस साइन को cos से पलट दो। क्यों पलटा? क्योंकि मुझे cos अकेला नहीं होना चाहिए, साइन अकेला होना चाहिए, सो cos को साइन में पलट दिया। 1 के साथ cos होना चाहिए, साइन को cos बना दिया। So that use quadrant concept to match with the formula. For example, 1 plus sin theta होगा तो एग्जाम्पल जिस दिखाया मैंने, तो 1 plus cos π/2 माइनस थीटा लिखना, क्योंकि 1 के साथ cos होना चाहिए। Then after matching, मैच हो गया, अब हो गया ना मैच, साइन अकेला 1 plus cos होना चाहिए। Then you apply the formula of step 2. You will get the answer. Okay? I hope I made you understand. Whenever I do sum and whenever I do any sum, I will do it in this way only. ये सब सोच के करूंगा मैं, ठीक है ना? So let's do a sum. Okay, now see, there are 3 sums I have written on the board. First one, prove that cos x by 1 minus sin x equals to tan pi/4 minus plus x/2. Second, prove that under root 1 plus sin x by 1 minus sin x equals to tan pi/4 plus x/2. Next, prove that sin x by 1 plus cos x equals to tan x/2. There are 3 sums. All the 3 sums are what? एक तरफ sin cos है, एक तरफ tan। वो LHS भी हो सकता है, RHS भी हो सकता है। यहाँ पे LHS में sin cos है, RHS tan है, RHS sin है, sin फॉर्म में RHS tan है। ओके, ये भी हो सकता है, ये इस तरफ हो, वो उस तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर स्पेशल टाइप 1 क्वेश्चन। one side we have tan, the other side we have sin cos combination. Now what's the job? So I am doing the question 1 solution. Question 2 is a homework. If you cannot do, most welcome to ask me. Okay, confirm with me. But whatever you are doing in these 2 questions, it should match exactly what protocol I have taught you. In class 11, you will not face much questions of this type. But in class 12, you will face a very handy part related to this concept. So please remember this is a very important part for your class 12. Okay. Now see, let's start with the question number 1. LHS, cos x by 1 minus sin x. We understand it's a type, special type 1. तो स्पेशल टाइप 1 में स्टेप 1 क्या बोलता है? मैच। 1 के साथ cos होना चाहिए, 1 के साथ क्या है? sin। और sin अकेला होना चाहिए, cos अकेला होने से नहीं चलेगा। So when it's not matching, we go to step 3. मैच कराओ, cos की जगह sin होना चाहिए, sin की जगह cos होना चाहिए। हाउ टू मैच? यूज क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। इन द प्लेस ऑफ cos कन्वर्ट sin ऑफ π/2 माइनस x। ऑलवेज यही करते हैं, 1 के साथ cos होना चाहिए, so sin को उलट दो, cos π/2 माइनस x। स्टेप
3 done. We have matched using quadrant concept. Now after matching you have to go for formulas. So sin theta, 2 sin theta by 2 divided by cos 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. What is theta? Pi by 2 minus x. 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2. ओके, अब देखो 2 2 गया, ये साइन और ये पावर गया, तो cos थीटा थीटा सेम है ना, सो cot थीटा बाई 2. मैं एक चीज मिस कर गया, सारा एंगल सेम होगा, एक्स एक्स एंगल सेम है, एक एक्स होता है, एक एक्स बाई 2 एंगल होता, देन कोई फायदा नहीं है करके, ठीक है ना, एंगल भी सेम होना चाहिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई मिस्ड. ओके, सो वी गॉट cot पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2. अब इसको मैं फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम सॉल्व करके दिखा रहा हूं. किसी किसी बच्चों को प्रॉब्लम होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऐसा है नहीं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 2. तो क्या बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 2, एक्स बाई 2. सो ये याद कर लो, पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2 इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. कहां से है, ऐसे है. बट वी गॉट cot, बट व्हाट वी हैव हियर tan. tan लाना है ना, तो मैंने cos को sin में कैसे पढ़ता है, क्वाड्रेंट कौन सा लगाया, वैसे cot थीटा वी नीड tan फॉर्म. तो कहने से tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये थीटा है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा. समझ में आया ना, तू कर रहे हैं क्या जिसमें tan फॉर्म में, सो आई डोंट नीड cot फॉर्म, आई नीड टू. अब तुम क्या गलती करोगे, हाँ RHS में tan फॉर्म में, तो cot को 1 बाई tan लिख देता हूं, तो वो तो 1 बाई tan हो गया ना, 1 बाई tan पाई 4 माइनस एक्स बाई 2. cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को मैं 1 बाई tan पाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, बट 1 बाई करके क्या करूंगा मैं, मेरे को तो ऊपर में चाहिए ना, न्यूमरेटर में चाहिए ना tan पाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसलिए मैं क्वाड्रेंट कौन सा लगा रहा हूं, cot को चेंज कर रहा हूं. cot थीटा को अगर लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा. सो थीटा क्या है, थीटा है ये, दिस होल थिंग इज थीटा. सो पाई बाई 2 माइनस थीटा. Now solve it. Pi by 2 minus theta minus and plus x by 2. 90 degree minus 45 degree is 45 degree. Pi by 4 plus x by 2. That is proof that. Okay. Now see, trigonometry is almost done. We left with only one last type, which is wonder of the world. That is quadratino questions. That is special questions type 2. Okay. We will do in the next video. Okay. Plus, thank you very much.